Hello everyone, I'm Shambhavi from Progressive Science Education, and today we're gonna take up with a new chapter of class 8, that is chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. And before we start this chapter, let's take a quick recap of our last chapter, that is Combustion and Flame, in which I will tell you some important points that you have to learn and that you have learned in your last chapter, that is Combustion and Flame. So, point number one, combustion is a chemical process in which a substance combines with the oxygen of air to give heat and sometimes light also. The substances which burns readily are called combustible substances. Petrol, LPG, kerosene, paper, etc. are combustible substances. The substances which do not burn are called non-combustible substances. Water, glass, sand, etc. are non-combustible substances. The lowest temperature up to which a substance must be heated before it catches fire is called its ignition temperature. A flame is a shining zone in which a combustible gaseous material undergoes combustion producing heat and light. A combustible substances which on burning produces a large amount of heat and light is called a fuel, and fuel can be solid, liquid and gaseous. An ideal fuel should be safe and cheap, burn at a moderate rate, leave no ash, produce no smoke and should have high calorific value. Burning of fuel causes pollution of the environment. It leads to global warming, acid rain, and other environmental problems. Now we are done with the quick recap of our last chapter, that is chapter number 6, Combustion and Flame. Now we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. So let's take a introduction about this chapter. So, conservation is the term used for protecting and caring for wildlife and the environment. This includes all the plants and the animals that live on the earth. On the earth, everything works and is able to survive with the circle of the life. Every single organism has a role to play in nature, from the tiny microorganisms to the biggest mammals. Likewise, each plants also play an important role in nature when there is a disturbance or a gap in the order of things due to the human greed or any other reasons. The earth's circles of the life becomes unbalanced, causing animals and the plants to die out, and thus arises the need of conservation. In this chapter, we shall discuss about the activities that causes imbalanced nature and the steps that should be taken to check them. Okay, so you know कि अर्थ पे कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं. जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो में डिस्कस किया ही था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए फ्रेंड की तरह भी वर्क करते हैं और जो हमारे लिए फो की तरह भी वर्क करते हैं. तो वैसे ही कई सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं, बड़े मैमल्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन सभी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वही आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे आप प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कंजर्वेशन का मीनिंग होता है प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग. तो कैसे आप अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स को बचाते हैं तो. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, consequences of deforestation and climate change, disruption of water cycle, deforestation and soil, loss of species, disrupted livelihood, conservation of forest and wildlife, national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, India's biodiversity at a glance, flora and fauna, endemic species, national park, red data book, migration, recycling of paper, deforestation, and some key terms, question and answers, and important topics I will discuss in next video. So these are the topics that we are going to learn in this chapter, that is conservation of plants and animals. So let's get started from our first topic, that is deforestation and its causes. So the earth is flourished with a great variety of plants and animals essential for the well-being and survival of mankind. जैसे कि आप जानते हैं अर्थ में ऐसी कई वैरायटी हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारे लिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड.
but the survival of these organisms is in threat due to deforestation. लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं. किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से. So you can say that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Over the last century, the green cover on the earth has reduced considerably. According to the United Nations Forest and Agriculture Organization (FAO), an estimated 18 million acres of forests are lost each year. Forests currently cover 30% of the world land mass. सो यू नो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि प्लांट्स को कट कर दिया जा रहा है हमारे और भी यूज़ करने के लिए. जैसे कि आप घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो लैंड में से जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो भी फॉरेस्ट होता है, उसको पूरी तरीके से कट कर दिया जाता है. इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कट होते हैं, उससे जितने भी वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब खत्म होने लग रहे हैं. सो ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर मेनी पर्पसेस. जैसे कि आप जानते हैं जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट में वो कई सारे पर्पसेस के लिए कट किए जाते हैं. सो क्या क्या पर्पसेस होते हैं? पॉइंट 1, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. आप कल्टीवेशन के लिए लैंड को क्लियर कर देते हैं. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. हाउसेस और फैक्ट्रीज बनाने के लिए कट कर देते हैं. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. आप फर्नीचर बनाने के लिए और वुड को फ्यूल की तरीके से यूज़ करने के लिए कट कर देते हैं. एंड इन एडिशन टू दीज, ऑयल एंड कोल माइनिंग रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड. Moreover, the construction of roadways and highways for their transportation also leads to clearing of forest. जैसे कि आप जानते हैं रोडवेज बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए और कई सारे ऐसे पर्पसेस होते हैं जिससे हम प्लांट्स को कट कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं और फॉरेस्ट को टोटली क्लियर कर देते हैं. सो सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल डॉट्स. जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे भी और कॉजेज़ होते हैं जिससे प्लांट्स क्लियर हो जाते हैं. जैसे अगर फॉरेस्ट में कभी आग लग जाती है या कभी सूखा पड़ जाता है, उससे भी क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है. सो फॉरेस्ट फायर बर्न्स द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन while trees die during the severe drought. Cattle ranching is another causes of deforestation. कैटल रैंचिंग क्या होती है? जब अगर आप अपने एनिमल्स को छोड़ देते हैं घास लेने के लिए, घास खाने के लिए, अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो उससे भी क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है. सो यू कैन सी दैट कैटल रैंचिंग इज अनदर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अभी आपने देखा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉजेज क्या होते हैं. नाउ यू विल सी दैट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. So deforestation disturbs the balance in nature. It increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets affected due to the deforestation. It indiscriminate cutting of trees continues rainfall and the fertility of the soil will decreases. Moreover, there will be increases changes of the natural calamities such as flood and droughts. सो आप जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कई सारे पर्पसेस से होता है जैसे कि आप जानते हैं. तो वैसे ही डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है टोटली. जैसे कि आप जानते हैं अगर आप प्लांट्स को कट करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ होने लगती है. उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है. और अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा इससे कई सारी चीज़ें डिफेक्ट होने लगती है, रेनफॉल कम होती है, इससे क्या होता है? ड्रॉट पड़ जाता है. सो यू कैन सी दैट देयर विल बी इंक्रीज चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट. सो फ्लड्स और ड्रॉट की वजह से भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफॉरेस्टेशन को ऑकर्स करती हैं. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कई कई जगह पे रेनफॉल कम होगी, सूखा पड़ जाएगा और जो ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघल के फिर बाढ़ आ जाएगी. इससे कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ह्यूमन लाइफ में अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो. नाउ अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे डिफॉरेस्टेशन किस किस टाइप से ऑकर होता है. सो यू कैन सी दैट अवर फर्स्ट टाइप इज डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल. सो सी पहले तो आप देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज में क्या होता है. फिर आप देखेंगे डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल. फिर आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल.
and after that you will see loss of species and disrupted livelihood. Okay, these are all points that we are going to discuss in the point that is consequences of deforestation. So let's get started from our first point, that is deforestation and climate change. सो डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है? सो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के कट होने से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने लगती है. जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. वैसे ही अगर ट्रीज कट होने लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा कम एब्जॉर्ब की जाएगी. इससे क्या होता है, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल इंक्रीज होने लगेगा जो कि एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगा, हीट कर देगा. इससे क्या होगा, हमारी अर्थ हीट होने लगेगी और ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी. और ग्लोबल वार्मिंग अगर होने लगती है तो उससे क्या होता है, हमारी जो वाटर साइकिल है वो भी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है. अभी आप वाटर साइकिल के बारे में देखेंगे. पहले आप ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है. वैसे ही क्लाइमेट, जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो क्लाइमेट चेंज होने लगेगा. गर्मी में गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगेगी. उससे क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन से अगर क्लाइमेट चेंज होने लगा तो प्लांट्स को और एनिमल्स को और भी ज़्यादा हार्म होता है और ह्यूमन काइंड को भी. ओके, मैन काइंड को भी बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल. अभी आपने देखा कि कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्लाइमेट को चेंज करता है. नाउ यू विल सी दैट कैसे डिफॉरेस्टेशन वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल को मेंटेन रखने के लिए. जैसे अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर एब्जॉर्ब ना करें तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगेगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इससे वाटर साइकिल में बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है. वाटर साइकिल अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही होने लगेगा हीट से, लेकिन रेनफॉल अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी. वाटर वेपर तो अच्छे से बनेगा लेकिन ट्रांसपिरेशन की मदद से आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छे से वाटर वेपर बनता है, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है जो कि वाटर साइकिल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है. सो यू कैन से दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल. दिस कुड कॉज ऑफ ड्रॉट. सो वो जितना भी वाटर रहेगा वो सब वाटर वेपर की मदद से, मतलब ट्रांसपिरेशन की हेल्प से सब इवेपरेट तो हो जाएगा लेकिन रेनफॉल कम हो जाएगी. उससे क्या होगा कि सूखा पड़ने लगेगा, ड्रॉट होने लगेगा. उससे क्या होगा कि जितने प्लांट्स बचे कुचे जितने भी प्लांट हैं वो सब भी खराब हो जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. नाउ वन नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल. अब आप देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन सॉइल को कैसे अफेक्ट करता है. So deforestation leads to the change in the soil properties. Physical properties of the soil get affected by the plantation and vegetation. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers, and this soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land get converted into deserts and it is called desertification. So deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil and the movement of water from the soil surfaces into the ground, that is infiltration rate is reduced. So there are floods and the other properties of soil like nutrient contents, texture etc also change become because of deforestation. So देखिए, अब डिफॉरेस्टेशन से सॉइल को क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है. सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है मींस प्लांटेशन को, वेजिटेशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है. कुछ ट्रीज़ जो होते हैं वो सॉइल इरोजन भी होने लगता है. जैसे अगर प्लांट्स कम होंगे तो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो सब रिमूव होने लगेगी, और रिमूव होने लगेगी तो उससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगा. उसका जो ह्यूमस है सब रिमूव हो जाएगा क्योंकि अगर प्लांट्स कम रहेंगे तो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी भी कम रहेगी. तो उससे क्या होगा, सॉइल की जो ह्यूमस है वो सब रिमूव हो जाएगी और सॉइल बहुत ही लेस फर्टाइल हो जाएगा. और इससे क्या होगा कि पूरा सॉइल जो है एक तरीके से डेजर्ट बनता जाएगा. सो आप इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं. और डिफॉरेस्टेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ करता है सॉइल में.
मीन्स अगर सॉइल में वाटर कम होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा, डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा। इससे क्या होगा, प्लांट्स जितने और रहेंगे वो सब भी खराब हो जाएंगे। सो इससे कि फ्लड्स अगर आएंगी तो सॉइल को और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे, उसकी टॉप लेयर को रिमूव कर देंगे और सॉइल बहुत ही लेस फर्टाइल हो जाएगी। Now, our next topic is loss of species. So, almost 70% of world plants and the animals live in the forest and are losing their habitat due to deforestation, and loss of habitat can lead to the species extinction, and this of species affects the whole ecosystem. जैसे कि आप जानते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन होने लगा तो आप जानते हैं कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स और कुछ ह्यूमन बीइंग भी जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनका हैबिटेट उनसे छिन जाएगा और उनकी स्पीसीज जो होगी वो ख़त्म होने लगेगी। अगर आपका घर आपसे छिन जाता है तो उससे क्या होगा, आप कहाँ रहेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इससे स्पीसीज़ जो हैं उनकी आने वाली स्पीसीज़ वो सब रिड्यूस होने लगेगी और ये पूरे इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। Okay, now our next topic is disrupted livelihood. So, deforestation also affects human life. Many inhabitants that live in and around forests earn their livelihood by processing and selling products obtained from the forest. Indiscriminate cutting of trees will result into displacement or migration of these people and shortage of many useful forest products. जैसे कि आप जानते हैं कि अगर प्लांट्स कम होने लगेंगे सो इससे क्या होगा, एनिमल्स को और प्लांट्स को तो हार्म होगा ही अगर फॉरेस्ट कम होने लगेंगे, बट ह्यूमन बीइंग को भी बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है। मीन्स जो लोग अपनी पूरी लाइफ ट्रीज़ की हेल्प से गुजार रहे हैं, जो ट्रीज़ की मदद से फर्नीचर्स बना रहे बेच रहे हैं या जो भी सामान बना रहे हैं ट्रीज़ की हेल्प से, वो सब तो बंद हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स सारे कट जाएंगे तो प्लांट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फिगर में प्लांट्स टोटली ख़त्म हो चुके हैं और इससे क्या हो रहा है कि लैंड बैरन हो गई है, टोटली बहुत ही ज़्यादा बैरन हो गई है। इससे यहाँ पर कि इसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत लेस हो गई है। अब यहाँ पर कोई और प्लांट उग भी नहीं सकता और ये लैंड पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और सो इससे क्या होता है कि इस जगह पे जो लोग रह रहे हैं वो सब माइग्रेट करने लगते हैं। यू नो व्हाट इज़ माइग्रेशन? जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी मांग को पूरी करने के लिए, मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, देन यू कैन से दैट इट इज़ माइग्रेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। So the measures taken to preserve and protect forests and wildlife are referred as conservation. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है। अगर आप अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें या उसकी केयर करें, सो यू कैन से दैट इट इज़ कंजर्वेशन. So conservation not only preserves the ecological and genetic diversity of flora and fauna of a place, it also preserves our natural resources. Several laws and acts have been instrumented for this purposes. जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है हमारी, वो केवल कि हमें ही बचाती नहीं है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी बहुत ही सेव करती है। जैसे कि आप फ्लोरा और फौना से बहुत ही फैमिलियर होंगे। यू नो दैट व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा प्लांट्स एंड फौना एनिमल्स, यू कैन से। और कई सारे लॉ और कई सारे एक्ट इंस्ट्रूमेंटेड किए गए इस पर्पसेस के लिए, मीन्स आप कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। सो अंडर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। अवर गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरियाज। हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया बनाए, जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिससे हम अपने प्लांट्स को, एनिमल्स को, मीन्स अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। कई सारे जो प्लांट्स एनिमल्स की स्पीसीज हैं उनको भी बचा सकते हैं और हमारे बायोस्फीयर को सेफ रख सकते हैं। यू कैन से दैट यू कैन सेव योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। मीन्स आप अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और बायोस्फीयर रिजर्व्स में सेफ रख सकते हैं। नाउ our next topic is national park, in which you will see that how can you save your plants and the animals in this area. So an area which is strictly reserved for the protection of wildlife is called national parks. Any national park
Activities like poaching, hunting, grazing of animals and cultivation are not allowed it. So the boundaries of our national parks are well marked. According to the latest data, there are more than 100 national park in our country. सो नेशनल पार्क क्या होता है? वहाँ पर आप अपने प्लांट्स और एनिमल्स को मीन्स अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट रख सकते हैं. वहाँ पर पोचिंग, हंटिंग और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन जैसी कोई भी प्रोसेस अलाउड नहीं होती है. वहाँ की जो बाउंड्री होती है वो वेल मार्क्ड रहती है. मीन्स आप उसकी मतलब अगर आपको पोचिंग, हंटिंग और ऐसे प्रोसेसेस करनी है तो आप वहाँ नहीं जा सकते. और वहाँ पर ऑलमोस्ट मीन्स यू कैन से दैट हमारी कंट्री में 100 नेशनल पार्क बन चुके हैं. यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क से ज़्यादा नेशनल पार्क बन चुके हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जैसे अभी आपने देखा कि आप नेशनल पार्क की हेल्प से कैसे अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं. नाउ यू विल सी दैट हाउ कैन यू सेव योर वाइल्ड लाइफ विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. So an area which is strictly reserved for the protection of animals is called sanctuaries. There are about 532 sanctuaries in our country. Boundaries of sanctuaries are not well defined, and in a sanctuary, the following activities are allowed that provide these do not interfere with the well-being of animals. First is harvesting of timber. Second is collection of minor forest products. So you know wildlife sanctuaries क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स अगर आप स्ट्रिक्टली अपने एनिमल्स को बचाने के लिए कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सेफ रखने के लिए. सो यू कैन से दैट इट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो देर आर अबाउट 532 सेंचुरीज. हमारी कंट्री में अबाउट 532 सेंचुरीज से ज़्यादा सेंचुरीज बन चुकी हैं और उनकी बाउंड्रीज जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पर स्ट्रिक्टली रिजर्व किया जाता है एनिमल्स को. और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउडेड भी होती हैं जो कि मतलब एनिमल्स को वेल बीइंग रखने के लिए कि आप कैसे अपने एनिमल्स को सुरक्षित रख सकते हैं. So you can say that harvesting of timber, collection of minor forest products, these are two the properties that you have discussed in wildlife sanctuaries. So अब आप नेशनल पार्क्स के बारे में मीन्स नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में तो बहुत ही डिस्कस कर चुके हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नेशनल पार्क एंड व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नाउ वी आर गोना टेक अप विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स. So you know what is biosphere reserves? So biosphere reserves are the multi-purposes protected area developed for the following objectives. So जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. सो सी विद दिस पॉइंट्स. So to conserve biodiversity and integrity of for plants, animals and microorganisms within natural ecosystem, to safeguard genetic diversity of species on which their continuing evolution depends, and to ensure sustainable use of natural resources through most appropriate technology for improvement and economic well-being of local people, to provide area for multifaceted research and monitoring, and to provide facilities for education and training. सो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो हमारी वाइल्ड लाइफ को, कैसे वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को अच्छी तरीके से सेफ रख सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू हैव टू लर्न इट. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व्स. नाउ अभी आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में देखा, बट इन दिस यू विल सी whole about that what is biosphere reserves actually. So biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity, and biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. There are 18 biosphere reserves in our country, and Nilgiri Biosphere Reserves was the first established in 1986. This is very important and may be asked in exams, that you have to know that Nilgiri Biosphere Reserves was the first established in 1986. And you can see that biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. बायोस्फीयर रिजर्व्स मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे और हमारा जो कल्चर है दैट एरिया का, मतलब उस एरिया का जो कल्चर है वो भी सेफ रहे.
Now 18 biosphere reserves set up in our country with their area. Date of designation and location are in next page. Okay. Now you can see that list of biosphere reserves, their area, date of destination and location. And by this you will understand wholly that what is biosphere reserves. Okay, you will understand with this list. So name of biosphere reserves and total geographical area kilometers square. So Nilgiri 5520, date of designation 1/8/1986, location in state union territory, part of Venant, Nagarhole, Bandipur and Municipal, Nilampur, Silent Valley and Sirvani Hills in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Now second is Nanda Devi, that is on 5860.69, date of designation 18/1/1988, part of Chamoli, Pithograph and Almora district in Uttarakhand. Nairoik in 1820, 1988, part of East, West and South Garo Hills district in Meghalaya. Now you have done with Neroic. Now come to the next point, that is 4, Manas 2837, 14/3/1989, part of Karkojal, Bandojian and Barapet, Nalbari, Kamrup and Darang district in Assam. Now these are all the points as you see in this figure, that learn all these, you can read it only. Okay, read it all these points that are mentioned in this figure, that is the list of biosphere reserves, their areas, date of designation and location. Okay, now see, these are some all. Now they are totally 18. Okay, you have to see all these 18 and you will learn some important. You can means आपको सारे नहीं लर्न करने, जो important है आपके लिए वो सब आप लर्न कर सकते हैं. So as you see in this figure, that is the figure of map. Okay, now I wanted to know you all that sites with a bold letter have been included in the world network of biosphere reserves of UNESCO. Okay, जो bold letters वाले हैं वो सब मतलब वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर में इंक्लूड किए जाते हैं. यू कैन से दैट यूनेस्को. ओके, नाउ एज यू सी इन दिस फिगर, इट इज द फिगर ऑफ पंचमरई बायोस्फीयर रिजर्व्स. नाउ India's biodiversity at a glance. So India is just 2% of the world landmass but 8% of the world biodiversity and found in the country. 16 types of forests are found in India, including the evergreen tropical rainforest, dry alpine scrub forest, semi-evergreen rainforest, deciduous monsoon forest, thorn forest, subtropical pine forest and more. India has some of the wettest, driest, hottest and coldest region in the world. India is one of the 18 mega diverse nations of the world. The two biodiversity hotspots present in the India and the Western Ghats and the East Himalayan region. About 11% of the plants biodiversity in the world is found in India. There are about 15,000 species of flowering plants in India. About 2546 species of fishes are found in India. India has about 198 species of amphibians. About 423 species of mammals are present in India. In the country, there are about 1331 species of bird and about 408 species of reptiles inhabit India. There are about 50,000 varieties of rice alone found in the country, making it the biggest reservoirs of rice on earth. Now I hope you all understand India's biodiversity at a glance and read it properly. Okay, now come to the next topic, that is flora and fauna. सो आप इससे तो बहुत ही फैमिलियर होंगे, जैसे कि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना. सो द प्लांट्स एंड द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया. So for example, sal
teak, mango, jamun, silver fern, arjun, etc. are the flora of Panchmarai Biosphere Reserves, and chikankara, blue bull, barking deer, cheetal, leopard, wild dog, wolf, etc. are the example of the fauna of these reserves. Now I will show you some pictures of these animals and plants. Okay. Now see this, that sal, jamun, silver fern, and arjun, cheetal, chikankara, blue bull, and wild dog. Okay, see this figure carefully, that these all are flora and fauna of Panchmarai Biosphere Reserves. Now, our next topic is endemic species. So, endemic species are those species of plants and animals which are found executively in a particular area. So, they are not naturally found anywhere else. So, a particular type of animals or the plants may be endemic to a zone, a state, or a country. For example, sal, Sengilena fern, and Palimorpa bamboo are the examples of endemic flora of Panchmarai Biosphere Reserves. Bison, Indian giant squirrel, and flying squirrels are other endemic fauna of this biosphere. The destruction of this habitat, increasing population, and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species, may endanger their existence. Now, collection of rare, endemic, and medicinal plants and poaching are other threats to reserves. So as you see in this figure, that there is a giant squirrel and Slingrina fern. I hope you all understand this topic and see this figure carefully, that I hope you understand this plant and this animal. This all about endemic spices. Okay, you can read it carefully. I hope you have learned this, and I hope that you all understand that what is actually flora and fauna and what is actually endemic spices. Okay. नाउ मेनली आपको इस चैप्टर में वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस किया, आपने कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स जिनको हमें रिजर्व्स रखना है उनके बारे में डिस्कस किया। आप कैसे अपनी कंट्री को डिफॉरेस्टेशन से बचा सकते हैं, या कैसे अपने प्लांट्स और एनिमल्स को इससे बचा सकते हैं, या कैसे अपनी सॉइल को सेफ रख सकते हैं, इसके बारे में आपने डिस्कस किया। और क्या क्या डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ होते हैं उसके बारे में आपने मेनली डिस्कस किया था। नाउ अब आप देखेंगे कि व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So, a wildlife sanctuary provides protection and stable life condition to wild animals. Here, illegal killing, poaching, or capturing of animals is strictly prohibited. India has about 532 wildlife sanctuaries, where animals like elephant, gharial, golden cat, rhinoceros, etc. are protected. And Indian wildlife sanctuaries are established in unique landscapes such as broad level forest, mountain forest, and bushland in deltas of major rivers. So the Thedicat bird sanctuary in the first bird sanctuary of the Kerala. This sanctuary is a habitat different varieties of cuckoo, orange head, thrush, oriental darter, British curd, tern are some other birds having some here. So जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो हमें प्रोटेक्शन, मतलब हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा था कि कैसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कई सारे एनिमल्स जो नहीं जी पाते हैं या मर जाते हैं या डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनको हार्म होता है या अपने हैबिटेट को वो खो देते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें कंजर्व किया जाता है, उन्हें कह सकते हैं आप। और वहाँ पर हंटिंग और इलीगल किलिंग बहुत ही मतलब कि मना किया जाता है, कि वहाँ पर इलीगल किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। और इंडिया में यू कैन से दैट 532 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी ज़्यादा सेंचुरीज बन चुकी हैं। और जितने भी एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, घड़ियाल और गोल्डन कैट, ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो सब वहीं पर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। Now I hope you all understand that what is actually wildlife sanctuary, and I hope that you will see this figure also, that is Thedicat bird sanctuary Kerala. Okay, so this figure carefully. Now our next topic is national park. Now आपने अब देख लिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, एंडेमिक स्पाइसेस के बारे में भी आपने देखा और फ्लोरा फौना के बारे में भी आपने देखा। Now you will see that what is national park. So national park are large areas that aside for the native plants, animals and the places in which they live.
These are large and deserve enough to protect whole set of ecosystem. An ecosystem compromises all the plants and the animals microorganisms in an area along with non-living components such as air, water, soil, sunlight, etc. In our country, there are about 103 national parks. Theli National Park was the first national park of India, which is known as Corbett National Park. सो नेशनल पार्क के बारे में जैसे आपने देखा था कि वहाँ पर कैसे एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, कि वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स सेफ रहते हैं और वहाँ का जो एरिया होता है वो वेल मार्क्ड रहता है कि उसके पास कोई भी नहीं जाता है और वहाँ पर मतलब कि कोई भी हंटिंग पोचिंग जैसे काम नहीं कर सकता है. सो ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है, बहुत ही डाइवर्स एरिया होता है हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत ही डाइवर्स होता है. यू कैन से दैट इट इज़ डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. ओके, सो नेशनल पार्क के बारे में भी आपने देखा है कि कैसे नेशनल पार्क होता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था कि नेशनल पार्क में आप अपने प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व अच्छी तरीके से कर सकते हैं. वो इतना डाइवर्स होता है कि आप अपने इकोसिस्टम को भी बचा सकते हैं और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने देखा है और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब मतलब वहाँ पर मतलब कंप्राइजेस रहते हैं. मतलब एक इकोसिस्टम जो हमारा पूरा टोटली बनता है इन सब चीज़ों से, वो सब सेफ रहता है. यू कैन से दैट अवर होल इकोसिस्टम जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कई सारी लिविंग, नॉन लिविंग जैसे कि एयर से, वाटर से, सॉइल से, सनलाइट से और भी कई चीज़ें जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम बनता है, वो सब टोटली सेफ रहता है. और आपको पता होना चाहिए कि देयर आर ऑलमोस्ट 103 नेशनल पार्क्स और उसमें से सबसे पहला नेशनल पार्क है हाईली नेशनल पार्क. दैट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. ओके, और इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी जाना जाता है. Now, some well-known national parks and sanctuaries set up in our country are listed below. So, the species protected there is also mentioned in the brackets. So, see those points. So, Jim Corbett National Park, which is in Uttarakhand and for tigers. Kanha National Park in MP for tigers. Bharatpur Bird Sanctuary, Rajasthan, winter home of migratory birds, most commonly Siberian crane. Nandakaran Biological Parks near Bhubaneswar, captive breeding of white tiger. Now, simply biosphere reserves, Odisha for tigers. Sasan Gir Sanctuary for Gujarat. In Asiatic Loin, Cheetal Sambhar. Karzinga Sanctuary, which is in Assam, one-horned rhinoceros. Sirsha Sanctuary, Haryana for birds. Bandipur Sanctuary, Karnataka for Indian elephant. National Botanical Garden, West Bengal for rare species of plants. The national parks are developed with the aim to protect the animals whose numbers are diminishing to the level and that they might face extinction. These are called as endangered animals. सो नेशनल पार्क्स जो हैं मेनली उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं जो ख़त्म हो रहे हैं या जिनका होना ज़रूरी है और जो पूरी तरीके से डिमिनिशिंग हो रहे हैं, मतलब जिनका लेवल पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, उनके लिए नेशनल पार्क्स बनाया जाता है. और ऐसे एनिमल्स को आप क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स. ओके, यू कैन से देम एज इंडेंजर्ड एनिमल्स. Now as you see in this figure that it is one-horned rhinoceros. जैसे मैंने आपको बताया कि one-horned rhinoceros को कहाँ पर सेव किया जाता है? करजिंगा सेंचुरी जो कि आसाम में है. और किसके लिए होता है? one-horned rhinoceros के लिए. Now दी नेक्स्ट फिगर डैट इज़ ऑफ टाइगर. टाइगर का तो कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि आपने देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है टाइगर्स के लिए. कन्हा नेशनल पार्क जो कि एमपी में है टाइगर्स के लिए. सिम्प्लीपल बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि उड़ीसा में है टाइगर्स के लिए. सिरसा सेंचुरी जो कि हरियाणा में है टाइगर्स के लिए. ये सब कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो कि टाइगर्स के लिए हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं दैट इट इज़ टाइगर. ओके, ही इज़ टाइगर. You can say that it is tiger. Now the another figure that is of elephant. Elephant के लिए भी कई सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जैसे कि मधुमलाई सेंचुरी दैट इज़ इन तमिलनाडु, दैट इज़ फॉर इंडियन एलिफेंट. ओके, यू कैन से.
सो ये एलिफेंट है, इसके लिए भी कई सारे ऐसे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको जितने फिगर दिखाया अभी, जैसे टाइगर के दिखाया, वन ऑन टाइनासोरस का दिखाया और एलिफेंट का दिखाया, ये सब एनिमल्स को सेव करने के लिए अलग अलग नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं. Now, Project Tiger. So, the government of India has taken a pioneering initiative for conserving its national animals and the tigers by launching Project Tiger in 1973. तो गवर्नमेंट्स ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एनिमल्स को, जितने भी हमारे नेशनल एनिमल है, जैसे कि आप जानते हैं टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है, उसे सेव करने के लिए उन्होंने एक लॉन्च किया. एज यू कैन से उन्होंने क्या लॉन्च किया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस project was to ensure the survival and the maintenance of tiger population in India. ये किस लिए किया गया कि हमारी जो टाइगर्स, मतलब जितने भी टाइगर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनके सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए किया गया. From 9 tiger reserves since its formative years, the Project Tiger's coverage has increased to 50% at present. So spread out in 18 of our tiger reserve states. So the success of this project is reflected by the fact that there was 1411 tigers in 2006, which increased to 1706 in 2011 and 2226 in 2014. According to the latest data, the count had gone up 2500 in 2016. अब आगे की जितनी भी मतलब कि उनका रिकॉर्ड है वो सब आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कैसे टाइगर जो है, टाइगर को हमने रिजर्व किया विद द हेल्प ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कई सारे ऐसे एरियाज़ में जिसमें हमने टाइगर्स की मेंटेनेंस को बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था. नाउ we are done with Project Tiger. Now our next topic is Red Data Book. अभी तक तो आपने कई चीज़ें ऐसी देखी कि कैसे आप उनको सेव करते हैं, क्या क्या कॉजेज है, आपने कई सारी चीज़ें देखी. नाउ अब आप अपने नेक्स्ट टॉपिक के आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू कैन से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेड डेटा बुक. इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा. दैट अ रेड डेटा बुक कंटेन लिस्ट ऑफ द स्पीसीज. रेड डेटा बुक में जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनकी लिस्ट होती है whose continued existence in the threatened. It keeps the record of all endangered animals and plants. इसमें जितने भी endangered animals हैं जो ख़त्म हो रहे हैं उनकी भी रिकॉर्ड रहता है. There are different red data books for plants, animals and other species. Each country has its own data book. Okay? जितने भी कंट्रीज़ होती हैं उनके अपने अपने रेड डेटा बुक होते हैं और उसमें जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं या जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म होने वाले हैं उनकी रिकॉर्ड होती हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेशन. सो यू नो माइग्रेशन क्या होते हैं, जब कोई अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं, माइग्रेशन. सो द वे ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू अनदर सिटी इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एनिमल्स ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, एंड द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन और फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और यू कैन से ह्यूमन बीइंग जब अपने होम टाउन से, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ से अगर दूसरी जगह चले जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे वो कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इट इज़ साइबेरियन क्रेन. ओके, माइग्रेटरी बर्ड, साइबेरियन क्रेन. आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा और आई होप दैट आपने इसे देखा भी होगा. इट इज़ माइग्रेटरी बर्ड विच इज़ साइबेरियन क्रेन. नाउ our next topic is recycling of paper. So the paper is made from wood pulp obtained from the wood of forest trees. You will be surprised to know that it takes 17 fully grown trees to make 1 ton of paper. एक पेपर को बनाने के लिए, एक टोन ऑफ पेपर बनाने के लिए 17 बड़े पेड़, मतलब 17 फुली ग्रोन ट्रीज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है. देखिए मतलब पेपर्स को बनाने के लिए कितने ज़्यादा पेड़ कट किए जाते हैं, यू नो कि एक टोन पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज़ को फुली कट किया जाता है. सो इफ़ ईच वन सेव्स एटलीस्ट 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in our years.
सो अगर आप एक शीट ऑफ पेपर भी बचाते हैं एक दिन में, तो आप कई सारे ट्रीज़ को भी बचा सकते हैं एक साल में. वी शुड सेव, रीयूज, यूज पेपर्स एंड रिसाइकिल इट. अगर आपने उस पेपर को मतलब सेव करिए, उसको फिर से यूज़ करिए, और अगर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसे रिसाइकिल करिए. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for the manufacturing paper, and moreover, the amount of harmful chemical used in the papers making will also be reduced. So I hope you understand that how can you save your paper and how can you recycle it by this topic, that is recycling of paper. Now our next topic is reforestation. अभी तक तो आपने सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया. नाउ यू विल सी दैट व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन. देखिए, जो डिफॉरेस्टेशन में तो आपने देखा, अगर आप ट्रीज़ को कट करते हैं या पूरी तरीके से कट करने लगते हैं तो उसे आप डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. पर रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. ओके, सो यू कैन से दैट रिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व्स द replanting and regeneration of previously damaged or destroyed forest. Reforestation is needed because huge areas of forest are being damaged or destroyed around the world on a daily basis. So the planted trees should generally be of same species which were found in that forest, and we should plant at least as many trees as we cut. सो देखिए, अगर आप प्लांट को कट करते हैं तो उसके साथ साथ आप उसे रिफॉरेस्ट भी कीजिए, मीन्स आप फिर से उसे उगाइए. इससे क्या होता है, अगर आप प्लांट कट भी करेंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आप प्लांट्स को उगाते जाएंगे तो आप अगर उसे कट भी कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम अपने इकोसिस्टम को सेफ रख सकेंगे. एंड रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. If the deforested area is left undisturbed, sufficient trees remains nearby and seeds can be dispersed via animals or winds. It reestablishes itself, and in natural deforestation there is no role of human beings. So देखिए, अगर आप जानते हैं कि अगर आप प्लांट्स उगाते हैं, जैसे फॉरेस्ट में ट्रीज़ कैसे उगते हैं, जैसे आप वहाँ पर तो मतलब सीड्स लगाने जाते नहीं हैं, तो वहाँ पर कैसे प्लांट्स उगते हैं, वो अपने आप से ही नेचुरली होता है, वो ह्यूमन बीइंग का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. सो अगर नेचुरली भी प्लांट्स उगते हैं, सो इससे भी रिफॉरेस्टेशन अगर होता है तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. यू कैन से दैट इट इज़ मे एसेंशियल फॉर अस. और अगर आप प्लांट्स उगा सकते हैं, अगर कोई लैंड जो है वो खाली है, अगर आप उसमें प्लांट उगा सकते हैं तो यू कैन डू सो. ओके, बाय रिफॉरेस्टेशन यू कैन सेव योरसेल्फ एंड सेव योर इकोसिस्टम ऑल्सो. इससे डिफॉरेस्टेशन का ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. नाउ the end. Thank you for watching my video, and if you all have any doubts regarding any topic, so please tell me in comment section. And if you all like my video, so please like, share, subscribe and press the bell icon. Okay, bye bye and take care.